Hello students, how are you? I hope so that you all are fine. As you all know that student nowadays, chapter number 4 quadratic equation is going on and exercise 4.2 it was running. In this exercise, my dear students, we have done third question, up to third question we have done. Today we are going to start the question number 4 of exercise 4.2. The question number 4 is find two consecutive positive integers. We have to find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Student, as you all know that already have told about consecutive integers. Consecutive integer means लगातार आने वाले numbers. It is given that the sum of whose square is 365. So question number 4, let two consecutive positive integers are x and x plus 1. According to question, sum of whose square, positive integers के स्क्वायर का सम x स्क्वायर और x प्लस 1 दोनों इंटीजर के होल स्क्वायर का सम, इट इज गिवन दैट कितना है 365. ये आपको क्या है गिवन है. नाउ x square as it is, here we are going to apply the formula a plus b का whole square. The formula is a square plus b square plus 2ab is equals to 365. This implies x square plus x square, 2x square plus 2x plus 1. We can shift constant term on left hand side because already have told on right side always we want the 0. Minus 365 is equals to 0. This implies 2x square plus 2x minus 364 is equals to 0. Here in this equation we are observing that 2 is common in all three terms. So we are going to take the common 2 common लेने जा रहे हैं तीनों terms में से. तो x square plus x minus 2 1 जा is equals to 0. We can shift 2 on right side. This implies x square plus x minus के 182 equal to 0 upon 2, that is 0. Now we need two numbers, such type of number we need whose product is 182 and difference is 1. ऐसे हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए और उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए. तो एज वी ऑल नो दैट 14 into 13 is equals to 182 and 14 minus 13 which is equals to 1. So x square plus in place of x we can write 14x minus के 13x minus के 182 equals to 0. We are going to take x common in first two terms. x कॉमन ले लिया x प्लस 14, नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 13 कॉमन ले लिया x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज वी आर ऑब्जर्विंग दैट x प्लस 14 इज अवेलेबल इन बोथ द टर्म्स. तो दोनों में से कॉमन लेने जा रहे हैं x प्लस 14 को. यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0. इफ x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 14. Not possible. Why it is not possible? Because we need positive integers, so that's why we can neglect minus 14. Now if x minus 13 equals to 0, then x equals to 13. So final answer, so positive integers are x, that is 13, and x plus 1, that is 13 plus 1 is equals to 14. This is the solution of this question number 4 of exercise 4.2. Now I am going to remove this solution from the board.
Our question number 5 of this exercise is the altitude of a right triangle is 7 less than its base. It is given that altitude जो है right triangle का वो base से 7 कम है. तो हमने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5. Let base of right triangle, हमने लेट कर लिया बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x. हमने राइट ट्रायंगल का बेस क्या मान लिया? x मान लिया. देन एल्टीट्यूड कितना गिवन है? उन्होंने कहा कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 7. ऑल्सो हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो गिवन है, कितना है? वो गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर. कितना गिवन है? ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है बाय नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर. हाइपोटेनियस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड x माइनस 7 का होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 दैट इज 169 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो फाइनली we are going to shift 169 on this side, then x square plus x square 2x square plus x square plus x square 2x square minus 14x plus 49 शिफ्ट कर दीजिए उसको उस साइड में, माइनस के 69 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 है और माइनस के 169 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120 इज इक्वल्स टू 0. वी आर ऑब्जर्विंग दैट अगेन 2 इज अवेलेबल इन ऑल दीज 3 टर्म्स, तो वी आर गोइंग टू टेक 2 कॉमन. ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0. 2 शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में. फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0 अपॉन 2 दैट इज 0. अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए. तो 12 5 जा 60 एंड 12 माइनस 5 7 होते हैं. तो इन प्लेस ऑफ 7 क्या लिखने जा रहे हैं? माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल्स टू 0. नाउ फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं. दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा अंदर? x माइनस 12. नेक्स्ट 2 में से प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए. x माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पर? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, जब इसको 0 के इक्वल लिया, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 5. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज x is the base of the triangle. Base is like a length and length can't be negative. Length जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. The product of these 2 terms is 0. इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है. This मोनोमियल टर्म विच इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो कौन 0 के इक्वल है? फिर x माइनस 12. सो x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12. तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 12 आ गई है. सो हैंस बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस इज इक्वल्स टू, बेस क्या था हमारा? x, दैट इज
12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5. लास्ट क्वेश्चन नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. This time I am going to remove the solution of question number 5 from the board. Now are the last question of this exercise, question number 6. A cottage industry produces a certain number of poetry article in a day. एक जो इंडस्ट्री है एक दिन में कुछ पोएट्री आर्टिकल बनाती है. It was observed on a particular day. The cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हर आर्टिकल का, वो 3 ज़्यादा है दुगने से नंबर ऑफ आर्टिकल के. नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90. अगर जब सारे आर्टिकल को आपने सेल किया और उनका जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ वो कितना है, अगर 90 रुपीज़ है तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो हमें क्या फाइंड करना है, कितने आर्टिकल बने उस दिन और हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या है. तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x. हमने मान लिया कि जो नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, कितने किए गए, x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए. देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तब एक आर्टिकल की या कहें हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल वो कितनी है. इन्होंने कहा था 3 मोर देन है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल के. 3 मोर देन है दैट इज 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल के दैट इज 2x. हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है 3 मोर देन है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल के. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है आपको क्या, ₹90 गिवन है आपको. टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. हर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर आपने उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना है, जो कि गिवन है कितना है 90. नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए थे आपने एक दिन में, x इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 प्लस 2x. 3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 90. नाउ ओपन द ब्रैकेट, x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3x प्लस x की मल्टीप्लाई 2x से, 2x स्क्वायर इक्वल टू 90. शिफ्ट कर दीजिए 90 को लेफ्ट हैंड साइड. देन फाइनल इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 इक्वल टू 0. नाउ 92 जा 180 के फैक्टर्स हमें चाहिए. वी नीड 2 नंबर्स, सच टाइप ऑफ नंबर्स वी नीड हुज प्रोडक्ट इज 180 एंड हुज डिफरेंस इज 3. ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 180 होना चाहिए और जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, उनका डिफरेंस होना चाहिए 3 आना चाहिए. तो अगर हम 15 की मल्टीप्लाई 12 से कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा. और 15 में से 12 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो हेयर वी आर गोइंग टू राइट इन प्लेस ऑफ 3x क्या लिख सकते हैं, 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0. नाउ फाइनली पहले 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया हमने x, अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस के 15. नेक्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन ले लिया हमने,
माइनस के 6 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 6 टू जा 12x और माइनस माइनस प्लस, और जब 6 से 90 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 15 इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में 2x प्लस 15 कॉमन है, ले लीजिए बाहर कॉमन, 2x प्लस 15 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ पर x माइनस के 6 इक्वल टू 0। इफ 2x प्लस के 15 इक्वल टू 0, दिस implies 2x इक्वल टू माइनस 15, फाइनली x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है ये? बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल कांट बी निगेटिव। जो आर्टिकल हैं, जो आपने आर्टिकल बनाए माइनस में बनाए, इट इज इम्पॉसिबल। सो इफ x माइनस के 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई है 6, x क्या था नंबर ऑफ आर्टिकल थे, सो हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी थी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 6, 6 टू जा 12 और 3 15, रुपी 15 आपका आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन द एक्सरसाइज 4.2, tomorrow we will start the exercise 4.3. till then student you will complete the all examples of exercise 4.2 with exercise 4.2. thank you, have a good day.